भारत के स्पेस मिशन के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहा है और आज का दिन हम कह सकते हैं स्पेस मिशन का एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है, जब मंगलयान ने मंगल के ग्रह में अपना प्रवेश किया है। और इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने एक तरह से इसको ऐतिहासिक दिन तो बताया ही, खुशियों का एक तरह से अंबार लग गया है और सारा देश वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पे गर्व कर रहा है। और ये बात हो रही है कि दरअसल हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं इस उपलब्धि के साथ, जहां पर अब तक बहुत सारे देश नहीं पहुंच पाए हैं। सिर्फ रशिया, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ही मंगल की ग्रह में अब तक पहुंच सके हैं। तो आज मंगल तक पहुंचने का ये सफर किस तरह का रहा वैज्ञानिकों का, और कहां तक हम पहुंचने के सपने देख रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। Okay, we have some new guests also joining us now. Amitabh Pandey, scientist, Patrick Chatterjee, and Ved Prakash Sandlas. He's a former ISRO scientist. He was the director of the Special Launch Vehicle program. He succeeded Dr. Abdul Kalam in this. So we should have some fresh perspective about what this great success which the ISRO scientists today have demonstrated to the world. So let me come to you, Ved Prakash ji, first. You know, when I was asking this earlier to the other guests, when this whole mission was first thought of, or there were some criticism about this mission not being adequate enough, or it was not, it was poorly envisaged and things like that. You think those critics who were there, including some very important scientists or former scientists of ISRO who had made such criticism, you think they have been answered adequately with what has happened today? If you talk about the critics, I think they were more related to the cost-benefit analysis. Exactly. What is the cost and what benefit we will achieve? I don't think there is any critic or any doubt on the capabilities of the space scientists or Indian scientists for that matter, or technologists, to achieve this kind of mission. We have already done it. In fact, some of the missions I feel like GSLV, they are much more complicated. The thousands and thousands of components which have to work satisfactorily, reliably within few seconds. Compared to that, this technically we have already capabilities. And if there is any doubt, it was well established, demonstrated during the Chandrayaan mission. So I think the critics or criticism still remains about the future of ISRO programs, manned missions and things of that kind of possibilities, going to other planets, whether they are cost effective or not. But then you see, if you see it from the angle of what we are learning, how, like Prime Minister mentioned in the morning, it is the team effort which ISRO has put in this mission, the confidence which they have demonstrated, the reliability which has been demonstrated, especially in relation to the remote automatic precision control of things away from you. You know, this can have benefits in the rest of the country for running various projects and programs. And our approach to thinking itself, that we are capable and we can do. So you're saying that this is a morale boosting, this is a, Patrick, would you say that it's just I want to ask one question. Ved Prakash ji, आप SLV का लॉन्च हुआ था 1979 में, और उससे पहले आई थिंक उसका कॉन्सेप्ट जो है 1970 से शुरू हो गया था बनना। लेकिन अगर हम 79 से भी बात करें तो 79 से 2014 के बीच में इसरो ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की, और मतलब 79 से अब तक हम कहाँ पहुँचे हैं? 79 और 80 बोला जाए, हाँ, जिसमें फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था SLV का, उस स्टेज पे ही दुनिया को दिखा दिया भारत ने कि वी आर कैपेबल ऑफ रीचिंग वेयर वी विश टू रीच. We leapfrogged, as Dr. Sarabhai defined it. We leapfrogged from bullock cart straight to the satellite launch vehicle and the Rohini satellites. Now, if you go from there, that in itself was a big confidence building step. लेकिन एक चीज बताइए, जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ये माना जाता है कि वो इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। इसरो इस तरह से कैसे काम कर पाता है? उसके अंदर वो कौन सी खूबी है जो उसका ड्राइव बनकर लगातार उसे आगे बढ़ा रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी इसरो शुरू से ही
अगर मैं आपको कहूँ जब 63 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ट्रिवेंड्रम के पास स्थापित किया गया, शुरू से ही it was having some kind of cosmopolitan outlook. People from all over the world, people from all over the country were there. So their approach to life was totally different kind. Their fraternity feeling, closeness was very strong. And they are all similar age group, if I may use the word. So what happened, they have established some norms and ethics of working together. Team effort. Now, this is the team effort we used to call in those days, that in ISRO 1 + 1 is not 2, 1 + 1 is 11. You see, that was the philosophy. So that culture, that work culture which was established by Vikram Sarabhai and others has continued all these years. Continued all through. Patrick, you know, coming to the mission itself, there were doubts about all these things about, you know, whether, but we are told now that it is almost a perfect mission, in the sense that perfectly it was placed in the orbit. You think, you know, it has been the previous failures of the previous missions of other countries has helped us in being so almost perfect? No, I don't think so. I think the fact that ISRO on its maiden venture to moon itself showed that it can succeed. ISRO had all the capabilities. It had all the confidence, all the indigenous technologies at their disposal. So this was just reconfirming the faith and confidence in their ability. I don't think this mission was taking the experience of the failures of other countries. Was not. It was not, because you don't think so? The reason is that the mechanism was completely indigenous. And moreover, even the orbit, the elliptical orbit, which is quite large, yes. 80,000 to 423. To 423, unlike MAVEN, which is 150 kilometers closest and 6,300 kilometers farthest. So the entire thing is an original idea. Ved Prakash, would you agree with that? Okay, in a way, yes. I will perhaps use different words. You know, they had failures which are more related to the beginners, if I may use the bad luck. Space people generally don't believe in luck or bad luck. They think we are in control of everything. No, beginner's luck. They talk of beginner's luck. Is it beginner's luck as far as India is concerned? No, we are not beginners in this field any longer. Okay. They were beginners. You see, they started moon missions in 60s. Right. Yes. That time technology was not developed. Transistors were not available. Right. Component. So the difficulties were much more for them. We have we have used the, this is very interesting, they were always using, Americans and Russians, older technologies. At any stage, their method of decision making was that let's use reliable technology which have already been established. While India has followed a leapfrogging technology, use the latest, and belief is the latest is the better. And latest developed indigenously? Okay, sir, there are components which are imported, bought from abroad. लेकिन अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे जो यूज नहीं किया भी गया होगा पहले, तो ये एक रिस्क भी था, और इसका मतलब हम लगातार नए रिस्क लेते रहे और उसमें सफल होते रहे. नहीं, इसमें रिस्क इसलिए नहीं है. Higher technology, better technology is less risky, less costly, more cost effective. This is the belief scientists and technologists generally have. So it is not that better technology is more risky or new technology is more risky. We have Amitabh Pandey also with us. Amitabh, the cost benefit analysis has been a major thing even before when this thing was launched. Now, now after this success, you think the critics will be able to satisfy the critics that what is the benefit coming out of this mission? Like when we look at the science mission, the cost benefit, just analyzing cost benefit ratio, I don't think is the right idea. Of course, because we have some of our limitation we made into our strength, but we should not rely on that forever. Now we need better resources. If you really want to go ahead, like say the space mission technology is advancing, like they are much ahead of us. They can send robotic mission to land on Mars. The mission are sent to comets, mission are sent to Saturn, or studying Saturn all the time. So of course,
we have to keep our limitation in mind, but at the same time we have to look for a new future. This success should guide us in that direction. Patrick, you know, now what next? What is it that we can do next? Because, you know, even Prime Minister today, it was a very inspiring speech by the Prime Minister talking of new challenges to be taken up and things like that. What is it which, I want both of you to answer this, what is it that the ISRO itself are capable of and are planning? Yes. So one of the foremost projects of ISRO is the ASTROSAT mission, right, where the payload of ASTROSAT would consist of multi-wave band telescopes. So there will be X-ray telescope, ultraviolet telescope, optical, infrared, and the sole objective of the ASTROSAT mission would be to pick up signals from distant active astronomical sources. Like, for example, you have black holes around which plasma, very hot plasma, is swirling about, and one expects that such sources, which are called active black hole binary systems, they emit in different areas of the electromagnetic spectrum, and ASTROSAT is going to pick up signals from these sources. The second most important goal of ASTROSAT is to throw light on the supermassive black holes which are there at the hearts of most of the galaxies. And because supermassive black holes, they tend to have thick density of plasma all around it, ASTROSAT would be able to study them at different wave bands. So ASTROSAT is one big project of ISRO. The second project is, of course, the robotic mission to moon, namely Chandrayaan-2. So they are planning to lower a robot analogous to what Curiosity rover is doing on the surface of Mars. We'll come to Chandrayaan-2. Ved Prakash ji, what, you know, this ASTROSAT, how important is it? Where are we as far as the launching of this kind of a mission is concerned? How long it would take? What are the challenges? What are the roadblocks? Okay, what he mentioned about little beyond our normal detailed planning period, which is very important. I assume he is talking only basically about that monitoring, reaching and studying the asteroids between the Mars and the Jupiter orbits. Between the two, there are a lot of asteroids, and there is a feeling that many of them can throw light how the universe itself was formed, how our solar system was formed. So that is a very important mission ISRO is thinking. Now before that, you know, ISRO plans very, very detailed planning they do for next 4 or 5 years. Literally month to month planning is available for next 4 or 5 years. And इसका मतलब इसरो अगर मान लीजिए आज कोई कॉन्सेप्ट चूज कर रहा है या जैसे मंगलयान का कॉन्सेप्ट बनाया गया तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना वक्त लगा? 9-10 महीने का ये सफर छोड़ दिया जाए, उससे पहले उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना वक्त लगा? ये जो मंगलयान मिशन है ये बड़ी एक्सेप्शनल मिशन है. ये सिर्फ 2 साल भी नहीं लगे थे इसको प्लान करने में, डिसाइड करने. जनरली इसरो मिशन जो है वो 4-5 साल. If I remember correctly, it was in the last Independence Day speech, that is 2013. Then Prime Minister Manmohan Singh announced this Mangalyaan mission. लेकिन उससे पहले बजट अनाउंस हो चुका था. उससे पहले बजट की बात की जा चुकी थी. When was it envisaged? Was it planned actually? It was envisaged. People were talking about it for 4 or 5 years, but the detailed planning started only about 3.5 years back. And of course, within 1.5 years, it was built and launched. Now, I think what I am saying, the major next few events, 2-3 events, which I am a technologist, engineer, yes. So I am not generally seeing from science angle, which is also very important. So if you see from that angle, which are the stepping stones to reach those science missions, if I may use the word. Next is, of course, the GSLV Mark III, which will carry 4 ton into geosynchronous. Once we do that, that will take us to a stage which Dr. Sarabhai pronounced 45 years ago, prophetically, that we want to be second to none to meet the needs of our people, of our country. 1968 he announced. So we will reach that stage now after GSLV Mark III, which is scheduled to be launched. Now, science point of view, if I may use the word, a technology point of view also, Chandrayaan-2 is the next mission, right. Which he mentioned, the rover. You are talking of Sarabhai. Actually, we have our
correspondent, we'll come back and we can continue this. Our correspondent Smriti is there in Ahmedabad with a guest. Yes, Smriti. I must say that today's success is a big achievement for India. With 100% precision and accuracy, we have reached there in the orbit of the red planet. To discuss more on this today, I have with me Dr. Bhagirath Mankar, who is a senior scientist, retired senior scientist. Sir, thank you so much for speaking to us. I must say that more than technological demonstration, this Mars mission is a scientific demonstration for India. That's right. How this mission to the space. संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनके ऑडियो में कुछ समस्या है, लेकिन मैं अमिताभ जी आपको शामिल करना चाहती हूँ। आज सिर्फ मंगलयान के सफर की कामयाबी की बात हम नहीं करेंगे, हम पूरे देश के वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं उसकी बात करना चाहते हैं। क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यहाँ से एक नया बदलाव आएगा? क्या वैज्ञानिक पहलू इसमें आप देखते हैं? क्या क्या वैज्ञानिक और साइंस की दिशा में हम इस मंगलयान की मतलब सफलता से हम अचीवमेंट देख पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा मतलब परेशान भी चल रहा हूँ इस मामले को लेके, क्योंकि एक तरफ हम ये सफलता हासिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे प्राइवेट चैनल पे देखेंगे कि पंडितों को बिठा दिया जाता है और मंगल की दशा बताने लगते हैं। हमें देखना ये है कि मंगल हमारा भविष्य नहीं बताएगा, मंगल हमारा भविष्य है। हमको इस नज़रिए से देखना होगा कि मंगल है, चांद है, सितारे हैं, इनमें हमारा भविष्य, हम जब वहाँ पहुँच पाएंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। तो ये जो पूरा पर्सपेक्टिव, मतलब हम मंगल से अपना भविष्य निर्धारित करेंगे, मंगल हमारा भविष्य नहीं निर्धारित करेगा, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, एग्जैक्टली। सो ये जहाँ हम पहुँचे हैं, जो शुरुआत हुई, भारत आज़ाद हुआ तो हम बहुत ही पिछड़े हुए गरीब देश थे। एक अकाल से निकले थे, जो बंगाल का अकाल था, आपको याद होगा। उसके बाद हमारी सफ़र की शुरुआत हुई स्पेस साइंस की, बुलक कार्ट और साइकिल से अपने रॉकेट्स को होते थे। ये जो पूरा पर्सपेक्टिव था हमारा, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो निहित है, साइंटिफिक टेम्पर का, एक सेकुलरिज्म का जो एक आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है, ये हमको है आगे ले जा सकता है। हमारा जो भविष्य है वो पंचांगों, पोथियों और ये अपना जो पंडितों के जो ढकोसला या पोंगापंथी, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। हमको आगे बढ़ने के लिए विज्ञान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम भविष्य हम देख रहे हैं तो हमको शुरुआत नीचे से करनी पड़ेगी। आज हमारे जो देश में पूरी जो शिक्षा पद्धति में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, उसमें सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। यूनिवर्सिटी रिसर्च का सेंटर बने। सारी दुनिया में जो लीडिंग एज डिस्कवरीज होती है, रिसर्च होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि हमें शिक्षा के जरिए इस साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप तो शिक्षक हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैंने बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी देखा है कि वो पढ़ते तो साइंस हैं, लेकिन विचारों से वो साइंटिफिक टेम्पर वाले नहीं भी होते हैं। तो साइंस में उनका रुझान और व्यक्तित्व भी साइंटिस्ट की तरह से डेवलप करने में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके जीवन में पैदा करने में ये जो हमारी कामयाबियां हैं, ये कितना महत्वपूर्ण रोल निभा सकती हैं? और कैसे हम ये विश्वास जगा सकेंगे अपने देश के लोगों में कि दरअसल साइंस से हम उन तमाम अनसुलझे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं जिसको लेकर हम हमेशा आशंकित रहते हैं, शंकित रहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो मैं तो समझता हूं कि जो मंगलयान का जो एक सफलता अभी देखने को मिला, वो जो स्कूल लेवल के छात्र हैं उनमें तो बहुत प्रोत्साहन जागृत करेगा। हाँ। और उनका जो कल्पना शक्ति वो काफी विस्तारित होगा इस एक बड़ा सफलता से। और कल्पना शक्ति जो विज्ञान पे आधारित हो, वो कल्पना शक्ति एक देश को बहुत डेवलप्ड और ताकतवर बना सकता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो सफलता, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सक्सेस है तो है ही, लेकिन ये भी दिखाता है कि इसरो के साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स वो मिलजुल के कैसे काम करते हैं, वो दर्शाता है। कोई भी सारे लेसन यहाँ सीखे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण काम अकेला कोई नहीं करता है, वो एक टीम एफर्ट से होती है।
तो इसरो हमें ये दिखा रहा है कि सबके साथ मिलजुल के एक टीम एफर्ट से अगर कोई काम किया जा सकता है वो 100%। तो इस गर्व के क्षण को हम अपनी ताकत में तब्दील कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उसको उस ड्राइव को समझें और उस ताकत को समझें कि जिसके जरिए हम अपने देश को विकास की राह पर आगे ले जा सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री की भाषा में अगर मैं बोलूं तो उन्होंने कहा है कि हमने अंतरिक्ष के पार एक और नई दुनिया देखी है जो हमारी कल्पनाओं से भी कल्पनाओं की दीवार को तोड़ती हुई आगे जा रही है। तो ये जो हमारी कल्पनाओं से परे की दुनिया है जब हम देखने जा रहे हैं, तो क्या हम आज इस ताकत को समझ रहे हैं जो आज इसरो ने साबित किया है? आजकल की जो जनरेशन कहना चाहिए कि जो बच्चे हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ वो तो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। बट कभी कभी उनका धर्म संकट है जब उनके माँ बाप या टीचर पुरानी पद्धति से के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, पुरानों के हिसाब से, और जो अंधविश्वास हैं, तो उनको डर लगता है कि उनके निगेट ना करें, उन्हें उनको नाखुश ना कर दें। तो उस जरिए के थ्रू अपनी जो भावना को है उसको सीमित रखते हैं। नहीं, लेकिन एजुकेशनिस्ट का एक काम यह भी है कि एजुकेशन में उन तमाम चीजों को इनकलकेट किया जाए, डाला जाए, ताकि बच्चों के अंदर जो पढ़ाई हो रही है या जो शिक्षा उनको मिल रही है उसके जरिए भी वो अपना खुद का एक दायरा बढ़ा सकें या ज्ञान बढ़ा सकें। बिल्कुल, ये टीचर्स को और पेरेंट्स को और एल्डर्स को रोल मॉडल बनना है, अपने आप एग्जाम्पल सेट करने हैं, फिर ही बच्चे फिर उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, फिर वो अंधविश्वास से दूर जाएंगे और जो जिस टाइप की सफलता है उसी टाइप का एफर्ट खुद करेंगे। जी, लेकिन हम सिर्फ किताबी बातें न करें। दरअसल जब तक हम इस बात को प्रूव नहीं करेंगे कि साइंस के जरिए जो है हम अनसुलझे सवालों को हल कर सकते हैं, जो अंधविश्वास उनके अंदर जो डर पैदा करता है उस डर को दूर कर सकते हैं, जब तक हम साइंस के जरिए ये नहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब तक हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं जो वैज्ञानिक टैंपर बनाने की बात बार बार कही जाती है। तो कैसे उन अनसुलझे सवालों को हम सॉल्व करेंगे? बिल्कुल, तो ये शिक्षकों का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं विज्ञान के, तो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक ना हो, उसका अध्ययन ना हो। उनको ये दिखाना चाहिए, देखिए भाई आप क्लासरूम में हैं, आप टीवी मॉनिटर देख रहे हैं या एलसीडी स्क्रीन पे लेक्चर्स देख रहे हैं या इंटरनेट यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये सारे जो हैं ये विज्ञान के देन हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर्स ने इन चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करके नहीं दिया। ये धीरे धीरे रिसर्च के थ्रू से, साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू से, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब विज्ञान के देन है। आपका रोशनी, आपका सीलिंग फैन, आपका एयर कंडीशनिंग, ये सभी विज्ञान के देन है। इसका मतलब हम तमाम सुविधाएं अवेल तो करते हैं लेकिन उसके वैज्ञानिक पहलू पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। विज्ञान को जीवन से जोड़ने के लिए और जीवन यापन का माध्यम बनाने के लिए किस तरह से जागरूक करने की जरूरत है अमिताभ जी तमाम समाज के लोगों को? मुझे याद रहा कि जैसे कि मैं यहाँ आ रहा था तो ड्राइवर से मेरी बात हो रही थी, तो परेशान हो रही थी कि अगर हमने सब जान लिया तो भगवान को कौन मानेगा। एक बहुत बड़े लोगों के दिमाग में डर बैठा हुआ है। हम कई बार मेरी चर्चा होती है कि हम कई लोगों को मिथकों को सच्चाई मान लेते हैं, मिथकों को, कि हमारे पास पुराने ज़माने में पता नहीं क्या था, पुष्पक विमान था, रॉकेट था, अग्निबाण था, एटम बम था। ये जो धारणा है, जो अंधविश्वास है और जो पुराण पंथ है, वो हमको 5000 सालों में बैलगाड़ी से आगे नहीं बढ़ा पाया। और विज्ञान के जरिए हम बैलगाड़ी से निकलकर रॉकेट के जरिए मंगल तक पहुँच गए हैं। हमको ये समझना चाहिए विज्ञान की रोशनी, जो विज्ञान का ज्ञान है, लेकिन ये भी ध्यान रखें टेक्नोलॉजी के लिए खाली नहीं है। जैसे आप बात कर रहे थे, अंधविश्वास की बात कर रहे थे, जो हमारे अंधविश्वास की वजह डर होता है और डर की वजह अज्ञान होता है। जब हमें किसी चीज़ का सही ज्ञान हो जाता है फिर हमारे मन से डर निकल जाता है। हम प्रयास करते हैं कि उस जो दिक्कत है उसको कैसे ठीक किया जाए, लेकिन जब तक हम अज्ञानी बने रहेंगे हमारे अंदर डर भी बैठा रहेगा। तो विज्ञान का सबसे मुख्य काम हमारे ज्ञान देना, जानकारी देना, और जानकारी से हमारा डर दूर होता है। जब हम मंगल से डरते, जो मैं चर्चा कर रहा था कि मंगल हमारा भविष्य नहीं बनाता है, बिगाड़ता है। मंगल से लोग जब देखते थे आकाश में एक लाल रंग का पता नहीं क्या है, कभी आगे चलता है कभी पीछे चलता है, तो पता नहीं क्या अनिष्ट होने वाला है। तो आज हमें पता चला है कि मंगल हमारी धरती जैसी एक जगह है जहां पर कल हमारी बस्तियां बस सकती हैं। एक हो सकता है कि मंगल पर जीवन के हमको निशान मिले तो पता चले कि आगे जानकारी मिले कि ब्रह्मांड में कहीं और कहीं जीवन मौजूद है कि नहीं है।
मंगल हमको ये भी दिशा दिखा सकता है कि कहीं मंगल, जैसे आप देखिए हमारे दो पड़ोसी ग्रह हैं, एक शुक्र ग्रह है, एक मंगल ग्रह है। एक ग्रह की दशा ये हुई कि वो पूरा जलता हुआ नर्क बन गया, वीनस जो है। दूसरी तरफ मंगल जो बर्फीला रेगिस्तान बन गया, बीच में हमारी धरती स्थित है लाइव जोन में। तो अगर हम वातावरण को बिगाड़ते चले जाएं तो कि ऐसा ना तो हमारा ग्रह शुक्र जैसा एक जलता हुआ नर्क बन जाए, या कहीं मंगल जैसा बर्फीला मतलब बंजर ना बन जाए। तो ये ग्रहों का अध्ययन हमें भविष्य की दिशा भी दिखाता है और हमारे धरती को भी ठीक से समझने का हमको रास्ता दिखाता है। ग्रहों के अध्ययन की बात हो रही है, इस ग्रह के अध्ययन के बारे में भी आप बता रहे थे कि वहाँ पर जीवन है कि नहीं, मीथेन गैस की खोज की जा सकती है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा दरअसल जब हम इस तरह की कल्पनाएं करते हैं कि हम अंतरिक्ष में जाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे, तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि क्या कभी हम वहाँ पर जाके देख पाएंगे उस चीज़ को, क्या कभी जीवन वहाँ पे संभव हो सकेगा। अभी तक की जितनी भी 21 सैटेलाइट्स वहाँ पर भेजने में सफलता हासिल की है पूरी दुनिया ने, लेकिन कोई जीवन के तत्व उस तरह से हासिल नहीं हो सके हैं। तो क्या इस अभियान से हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ऐसी नई जानकारी मिलेगी मीथेन के अलावा जो हम दुनिया को दे सकेंगे? देखिए, क्यूरियोसिटी रोवर ने एस्टैब्लिश कर लिया है कि वहाँ पे जल स्रोत था कभी, मतलब बहता हुआ पानी बिलियन ईयर्स पहले था वहाँ पे। लेकिन सिर्फ पानी रहने से जीवित प्राणी रहना, ये कोई उसका एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। तो मीथेन अगर मिल जाता है मंगलयान को, तब तो पॉसिबिलिटी, जीवन का पॉसिबिलिटी एक जमाने में था करके बहुत बड़ा वो एक पॉसिबिलिटी रह जाएगा। अब आप बात कर रहे हैं कि वहां पे जनबसति क्या हो सकता है कभी भविष्य में, हो सकता है, लेकिन ये इमीडिएट भविष्य में नहीं होगा। इसकी वजह यह है, देखिए 300 दिन आप भेजेंगे तो 1 या 2 मानव को ही भेजेंगे एस्ट्रोनॉट के रूप में। नहीं, क्या इस यात्रा को, जो 300 दिनों की यात्रा है मंगलयान की, उस यात्रा को थोड़ा छोटा भी किया जा सकता है? कभी ऐसा हम सोच सकते हैं? नहीं, हो सकता है, क्योंकि आपके पास अगर पावरफुल रॉकेट हैं तो हो सकता है। लेकिन पावरफुल रॉकेट होने से वैसे जो एस्ट्रोनॉट हाई जी एक्सेलरेशन का, जो अगर हाई एक्सेलरेशन होगा, एक सूडो ग्रेविटी भी एक्ट करता है, तो वो भी ट्रेनिंग दिया जाता है एस्ट्रोनॉट। इसके बारे में आपसे पूछेंगे, लेकिन आप जीवन के बारे में बात कर रहे थे। तो मीथेन अगर मिल जाता है तब तो एक बड़ा इंडिकेटर होगा कि एक जमाने में शायद वहां पे जीवन था। फिर भी कंफर्म नहीं करेगा कि जीवन था या नहीं, लेकिन ये इंडिकेट करेगा कि पानी तो था ही। मीथेन गैस के मिलने पर ये हम बोल सकेंगे कि एक जमाने में शायद वहां पे जीवन था। ये तो एक बात है। तो हमारे ये कल्पना शक्ति, जीवन के होने के लिए सिर्फ पानी ही जरूरी है या फिर उसके अलावा जो तमाम मिनरल्स हैं उनका भी होना जरूरी है? तो अभी तक पृथ्वी पे जो भी जीवन हमें देखने को मिले हैं वो सारे पानी और कार्बन कंपाउंड बेस्ड हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पानी के ऊपर आधारित है। तो अगर हम पृथ्वी जैसा पानी ढूंढ रहे हैं, पृथ्वी जैसा जीवन ढूंढ रहे हैं, तो हमें मंगल पे ये देखना पड़ेगा पानी है या, अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन इनके परिमात्रा सफिशिएंट है या नहीं। तो ये अगर मिल जाता है तो शायद एक जमाने में मंगल पे जीवन था, लेकिन कॉम्प्लेक्स लाइफ वो शायद उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। छोटे छोटे माइक्रोब्स का एक जमाने में होना ठीक है, लेकिन हमारे पृथ्वी में छोटे छोटे माइक्रोब्स कैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मानव पैदा किया, वो एक बिलियन ईयर्स का इवोल्यूशन है, जो डार्विन ने, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट डार्विन ने बताया कि कैसे जीवन का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग नेचुरल कंडीशन, उसका जो अवधि है बहुत लंबा है। तो कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम ह्यूमन बींग्स के जैसे विद इंटेलिजेंस, उसके लिए जीवन का बहुत लंबे वक्त तक रहने की जरूरत है। जी,
तो अगर हमें वो जानकारी मिल भी जाए तो इससे ही सिर्फ नहीं साबित हो सकता है कि मंगल पर जीवन है या नहीं है। मैंने एक और सवाल आपसे पूछा था, मैं उसी को आपसे भी दोहराना चाहूँगी। बहुत बार ये कहा जा रहा है कि इस अभियान के सफल होने के बाद हम दुनिया की वो चौथी ताकत बन जाएंगे जिसमें हम एलीट क्लब में शामिल हो सकते हैं और हम दुनिया में गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा करके चल सकते हैं स्पेस साइंस की दिशा में। लेकिन अभी तक जो हमने हासिल किया है वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में कामयाबी हासिल की है, जो मंगलयान की कामयाबी की बात कही जा रही है। क्या इस तरह के जो मिशन हैं उसको और कम समय का, यानी उसका समय का दायरा और छोटा किया जा सकता है ताकि उसे और जल्दी भेजा जा सके और हम एक नई इबारत लिख सकें? पहले तो मैं कहना चाहूँ, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने कहा ये तो एक तरीका कहने का, बट इस वक्त भारत इस स्थिति में है कि जो भी हम चाहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने बेनिफिट्स के लिए हम अचीव कर सकते हैं। वी आर कैपेबल। नॉट ओनली दैट, हम कमर्शियली वायबल भी हैं, दूसरों की भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो वी आर सेकंड टू नन नाउ, एज डॉक्टर साराभाई डिफाइंड 45 years ago. 45 years, Dr. Sarabhai said that we have no intention of competing with the developed countries. But today that situation is not correct. Today we are competing. So we have gone much higher than that. That is one. Second thing आपने पूछा था मेरे ख्याल में कि अगर जाना है वहाँ, अगर मंगल या चंद्रयान की जो हमारी दूरी है, हाँ, वो दूरी तो है लेकिन उसके टाइम को हम कुछ कम कर सकते हैं क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में विकसित हो सकती है? तब शायद आप जो आप कह रहे हैं कंपटीशन, वो थोड़ा और उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके लिए दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। दो तरीके से हैं सोचने के। एक तो आज से अगर 50-60 साल पहले आप सोचें, एयरक्राफ्ट में 60-70 साल पे कोई नहीं सोच सकता कि 500 आदमी या 1000 आदमी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर सकते हैं एट ए टाइम। कोई सोच भी नहीं सकता था। आजकल कॉमन है ये। आज से 20-25 साल पहले कोई नहीं सोचता था कि 1 या 2 से एस्ट्रोनॉट एट ए टाइम कुछ दिन से ज़्यादा रह सकते हैं। इवन मून पे भी जब गए तो वो भी 2-4 दिन के बाद वापस आ गए। इस वक्त हमारी कैपेबिलिटीज जो साइंटिस्ट की है, जो स्पेस स्टेशन में 6 महीने तक आराम से रह सकते हैं और 1 नहीं 2 नहीं 10-10 लोग इकट्ठे रहते हैं और खाते पीते हैं, रहते हैं, सारे रोजमर्रा के काम करते हैं। तो ये पोजीशन है इस वक्त। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है, पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा, जो टाइम पीरियड आपने कहा है ये 10 महीने लगे हैं वहां पहुंचने में, उसमें जरा मुश्किल है। वैसे थ्योरेटिकली तो हम ज्यादा पावरफुल रॉकेट बना के ज्यादा वेलोसिटी देके जल्दी पहुंच सकते हैं, पर वो बहुत महंगा काम है। इसके अंदर क्या है, जब वो अर्थ की ग्रेविटी से निकलता है सैटेलाइट, वहां से मार्स तक पहुंचे 10 महीने में उसमें कोई फ्यूल कंजम्पशन नहीं होता जी, वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ही चलता है, तो उसमें खर्चा कोई नहीं है। तो एज लॉन्ग एज वी डिपेंड ऑन दैट, then we'll need this time. But if you stretch yourself to think we will use nuclear power, लो न्यूक्लियर पावर यूज हुई है सैटेलाइट्स में, ऐसा नहीं हुई है, यूज हुई है। कौन-कौन से देशों ने यूज किया? अमेरिका ने यूज किया है, रशिया ने यूज किया है। जो लॉन्ग लाइफ मिशंस होते हैं उसमें न्यूक्लियर पावर यूज होता है, ऐसा नहीं होता। तो उसको यूज करें, हायर बेटर क्वालिटी, मोर एफिशिएंट एनर्जी, लेकिन वो खर्चीला ज्यादा होगा, वी कैन गो फास्टर। ओके, और अब तो वो भी नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी अनसेफ मानी जाए, अनसेफ भी नहीं मानते, सेफ है एनफ। तो theoretically it is possible that in the next within the limits of imagination नहीं है इस वक्त, पर मेरे ख्याल में साइंटिस्ट की इमेजिनेशन में है कि अगले 10-15 साल में larger number of people will travel to moon perhaps, and if not stay there at least go and come back, similarly to Mars। 10 महीना बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। आज से जब ये 200-300 साल पहले जब वो शिप से जाते थे लोग, तब भी दो चीज थी ट्रैवल करना, कई बार 2-2 साल भी हमने सुने हैं कि पुराने जमाने में। Are you talking of a manned missions to manned mission to Mars? To moon. You think there'll be a manned mission to moon and Mars? Yes. It's Mars possible. also. Even Mars, it's possible. It is Mars. Around Mars, you can go and come back. That is space. Because it is, the biggest impediment seems to be the number of days that you have to spend to reach there. वही बात कर रहे थे। Oxygen supply, huge amount of oxygen supply is required. So I think there are some problems also there. The manned missions have been only to moon right now. No, there are some problems with living long duration in space. Our body has not evolved to live in space. The first serious problem most of the astronauts encounter when they go on International Space Station is that their bone density start decreasing.
The calcium leaches out of brain, sometimes it deposits in kidney also, and it is a very painful thing. The bones become very fragile. Second problem, because in space you are not working, your body doesn't work on the ground. Here, when I am sitting, I am standing, my muscles are working to keep me in balance. In space, our heart muscle also have become weak. So that is second problem. Then other social problems, so they are living in a confined space for a 10-month duration in one way and 10 months coming back is I think it can be a serious hazard. So we have yet to work out to solve this medical problem, biological medical problem. Amitabh, will come back to you. We have our correspondent Mohammad Tipu, who is with Anurag Kumar of community communicator, he is a science communicator. Yes, Tipu. जी हेलो Yeah, continue, Tipu. जी हमारे साथ अनुराग कुमार जी हैं जो कि मार्स मिशन की कामयाबी के बाद हमसे बात करेंगे और जो यहाँ पे साइंस कम्युनिकेटर हैं। सर कितना बड़ा अचीवमेंट आप देश के लिए मानते हैं? बहुत ही बड़ा। इनफैक्ट यदि हम एक तरह से कहें तो इस सदी का तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट एक तरह से माना जा सकता है, क्योंकि यह जिस कामयाबी के साथ इसे हमने हासिल किया है यह कोई आसान बात नहीं है। पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है, तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी कितनी महत्ता है हमारे लिए। सर अगर हम इस मिशन के बारे में बात करें तो टाइम मैनेजमेंट और कॉस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये संपूर्ण मिशन जो 9 महीने का सफर पूरा करके आज अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा है, कितना अहमियत देते हैं, कितना अहम मानते हैं इसको आप? बहुत ही अहम है। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि मार्स पर पहुंचना बहुत आसान काम नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज होनी चाहिए और ऐसा मौका 3 साल 4 साल में एक बार आता है जब हम पृथ्वी से मोस्ट इकोनॉमिकल वे में बहुत कम खर्चे में मार्स तक पहुंच सकते हैं। पिछला मौका 2011 में आया था, उसके बाद 2014 में आया। यदि हम ये टारगेट मिस कर जाते तो शायद 2017 तक हमें इंतज़ार करना पड़ता या शायद उससे भी ज़्यादा। तो इसरो का ये एम था कि इस टाइम टारगेट को नहीं मिस करना है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को 15 महीने में बनाया, पूरे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया। कॉस्ट 450 करोड़ जो कि काफ़ी ही कम है, इसरो के बजट का भी 5% है। तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि यह टाइम मैनेजमेंट और कॉस्ट और प्रिसिशन, इन तीनों के मामले में काफ़ी ही अच्छी सफलता है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद आपको लगता है कि विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने का भी ऑर्डर भारत को मिल सकता है? देखिए, विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च करने का ऑर्डर आज भी भारत को मिल रहा है और इससे भारत की तकनीकी क्षमता ने जो विश्व पर जो छाप छोड़ी है, जिसे आज नासा भी एक्नॉलेज कर रहा है, तो निश्चित रूप से जितने भी विदेशी स्पेस प्रोग्राम्स हैं उसमें भारत का योगदान काफ़ी बढ़ने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद में आपको लगता है कि कुछ कॉलोनी वगैरह या स्पेस स्टेशन का भी एस्टेब्लिशमेंट मार्स पर हो सकता है? उसके लिए तो अभी काफ़ी अर्ली होगा कुछ भी कहना, क्योंकि अभी जो मिशन है वो एक ऑर्बिटर मिशन है, जिसका मतलब हुआ कि हमारा जो मिशन है वो मार्स के चारों ओर चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाने के दौरान उसके एटमॉस्फेयर की जानकारी लेगा, उसके फोटोग्राफ्स लेगा, उसको भेजेगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट मिशन होगा, जब भी भारत ये डिसाइड करेगा, तो नेक्स्ट मिशन ये रहेगा कि हम अपने एक लैंड रोवर को उतारें मार्स के सरफेस पे, और वो करने के बाद वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, किस परिस्थिति में हम वहाँ एक जीवन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उन सब के स्टडी के बाद ही यह कहना संभव होगा कि मार्स का भविष्य पृथ्वीवासियों के लिए कैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका मानना है कि अभी पहला पड़ाव हासिल कर लिया है, अभी कई पड़ाव ऐसे आने हैं जिसमें भारत को दिन प्रतिदिन नित नए आयाम हासिल करने हैं। स्टूडियो। Okay, thank you, Tipu. Amitabh, you are talking about the problems, which are there for manned missions. The longest manned mission so far, the US, 400 days he was staying in a space station. Yeah. You think beyond that, it is possible in places like Mars? Yeah, it actually the problem is biological problem. Yeah. So that we have to solve it from different angle.
then there are problems to we can go and just like moon, we have gone and landed their moon and came back. We can do on Mars. That is not not very difficult. But we want to have longer stay on the Mars. For that we have to develop a system. Of course, the ISS working in that direction. How to make long duration habitat in space. Similar modules can be landed on moon or on Mars. But again, the problem will remain. Going there and coming back, staying some time, then the environment on the surface of Mars is not very hostile, not like Earth. There are no, our atmosphere is very, very thin. Right. Ultraviolet radiation reaches the surface all the time because there is no ozone layer. Magnetic field is also negligible of Mars. So then the two very serious problem. So, but unlike Amitabh, you are very optimistic, Ved Prakash ji. No, Ved Prakash ji, I want to ask one more question. Some of the we're talking this mission which is there now, which is orbiting the. What problems can crop up in these next 6 months that it is supposed to be? What are the challenges now? 2-3 challenges मैं quickly thinking में कह सकता हूँ. एक तो मार्शियन एटमॉस्फेयर ऐसा है, उसमें डस्ट स्टॉर्म टाइप ऑफ थिंग आता है, वो कवर कर देता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता. फोटोग्राफी इज वन ऑफ द मेन एक्टिविटीज हमारे सैटेलाइट में विल बी देयर, दैट विल बी अफेक्टेड. इसकी डिजाइन लाइफ इज अराउंड 10 months. So if those kind of activities, atmospheric disruption take place, then they generally last for months together, 3-4 months. So we will lose lot of time. It is not like the desert storms here which comes वहाँ पर dust storm will remain for months together. Okay, that is one difficulty. Electronics items may, I have not much worry. I think these days electronics nobody buys thinking it will live for 5 years or 6 years. Even watch you want lifelong guarantee. Absolutely. So electronics में battery में limit है 10 महीने की, plant limit, but it can live for longer. Worst case condition में 10 महीने. Solar panels, radiation effects. These are certain unknown phenomena. Sometime higher radiation comes from the sun. लेकिन एक बड़ा चैलेंज है जो 19 अक्टूबर को कॉमेट क्रॉस करने वाला है मार्स को. उसको लेकर अमेरिकी वैज्ञानिक भी बहुत चिंतित हैं कि मैविन को कहीं नुकसान न पहुंचे. हमारे वैज्ञानिक भी चिंतित होंगे. वो कितना खतरनाक है? तो जो कमेट गुजरने वाला है 19 अक्टूबर को, उसका नाम है साइडिंग स्प्रिंग. And where is it expected to cross? The Mars. It's expected to cross the Mars. The tail of the comet is going to cross Mars, and the tail would have tiny icy dust grains, but although the size of these dust grains are small, but they will be having tremendous relative velocities. Okay. Huge relative velocities, and therefore if they collide with the solar panels are very spread out. Solar panels of the spacecrafts. Of the Mangalyaan as well as MAVEN. And any big surface area and thin panel, if these dust particles collide with high velocity, they can damage the system. So that danger, the prospect of some kind of a damage due to this the tail of the comet is there. On the other hand, you can look at it from positive point of view, that Mangalyaan would be in a position to study the tail of the comet in situ, because it will be just the comet will be crossing, and Mangalyaan can look at its thermal spectrum because it has an infrared camera. It can take. What about MAVEN? Is MAVEN at a more disadvantage as far as this comet is concerned compared to? No, it is at a better position, because MAVEN, whose full form is Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Yes. So it can check any kind of gaseous environment, any kind of evaporation, any kind of wind. So those technology. So MAVEN would be able to warn the Mangalyaan if there is any danger of any clashing or any other problem. I don't think MAVEN can communicate with Mangalyaan, but NASA can communicate with ISRO. NASA can communicate with ISRO. Yes. So in that sense, they'll be exchanging. They already have in the offing of exchanging data with each other. So what are the other challenges, sir? You're talking about one or two which you said earlier. Yeah. What are the challenges for the next 6 months?
what are the problems which could crop up Otherwise apart from this comment I which don't see much problem on this thing. Of course, we will help Maven people will help, because it's a question of who picks up the signals first. Absolutely. And I think the hint that he has given, it is a big opportunity for us and for them also, Maven also, to look at the comet tail more closely. I think that challenge or the advantage is better, much higher than the risk that is there, because risk is more reliability, not reliability, possibility, probability kind of a risk is very low probability, but there is a finite probability that we may be affected by that. But okay, Amitabh, yes, Amitabh. This chance of hitting a meteorite in the solar panel is very low. It is very small area. That the cross profile is very small, and there is very rare chance it is going to strike and damage some part seriously. Minor strike is not so important. लेकिन जाने से पहले एक सवाल जरूर, जो मैन मिशन भेजने की बात हो रही है, जिसमें आम लोगों की दिलचस्पी हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, आपने कहा कि मैन मिशन भेजना आसान नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं, और एक इंसान जिसको धरती पर रहने की आदत है वो अंतरिक्ष में जाकर उतने कंफर्टेबल तरीके से नहीं जी सकता है किसी भी रॉकेट के अंदर बंद होकर। लेकिन क्या आपको लगता है ये संभव है? या मेरे ख्याल में संभव है कि एक्चुअली मैन मिशंस के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो सेल्फ सस्टेनिंग नीड्स लाइक वाटर, ऑक्सीजन, कि आर यू कैरिंग विद हिम, आर यू एबल टू जनरेट देयर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मून, it is very difficult to generate these things, water and oxygen there. So but when you think about Mars, the situation is different. There the atmosphere is 90% carbon dioxide. So there is a possibility, methane he said. So biological life that has been is possible in certain close thing to work there. Second thing, important thing is, for one is this kind of thing. Second thing is gravity, which he I think gave a hint, which is affecting. See, up to 6 months, 8 months people have lived already, but those satellites are not having any artificial gravity. See, if you want to live longer, we must go with an artificial gravity. Now there are plans already, and there are people working. There are places between the moon and the earth where spacecraft will just hang. The gravitation forces will balance it out. Now there they are thinking of putting small, slightly bigger kind of satellite which will rotate and kind of create artificial gravity which will not have that kind of effect. So there is a possibility next. वैज्ञानिक प्रयोगों पे हमें भरोसा है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये Mr. Sandlas, you seem to be more optimistic about a manned mission to Mars. We have to solve this problem, but we have to solve the problem. But these are all very exciting things to talk about. We have heard a lot of, there are a lot of science fiction movies and books which are being written. Now we are at a stage where some of them are actually becoming real, some of them. And Stephen Hawking has said that one day humans have to find some other place to go and live in. We will see how it will all work out. Thanks to all the guests who have been with us, Amitabh Pandey, Mr. Sandlas, Patrick Chatterjee. The discussion will continue on the channel on Mars and beyond, and also the great success which we have seen today. Meanwhile, we'll go into a short break. Please keep watching.